Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 3, which is about अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो जब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की, तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो हमें पता है कि हमें कुछ समझना है, बट बात आती है क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स में हमारी कैटेगरी ऑफ पॉलीगन्स आते हैं जिनके पास 4 एंगल्स और 4 शेप्स होती हैं। तो देखना अब ये इंटरेस्टिंग है कि हम ये 4 शेप और 4 एंगल्स वाले क्वाड्रिलेटरल्स में इनकी कितनी प्रॉपर्टीज है, और आज तक जिन्हें हम अलग अलग शेप के बेसिस पर पढ़ते आए हैं, क्या आपको ये पता भी था कि इन क्वाड्रिलेटरल्स में वो शेप इंक्लूड होती हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इस को आगे हम थ्रिल को रिवील करेंगे, बट उससे पहले इंट्रोडक्शन के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। We see houses, playgrounds, school buildings, fields, bridges, railway tracks, etc. around us. We also see windows, blackboards, ludos, carom board, kites, and other things around. When we draw these things, what do the figures looks like? What is the basic geometrical shape in all these? Most of these are quadrilateral figures with 4 sides. Quadrilaterals are one type of polygon which has 4 sides and 4 vertices and 4 angles along with 2 diagonals. यानी कि क्या बताया? Quadrilaterals 4 angles, quadrilaterals 4 vertex, quadrilaterals 4 side, quadrilaterals 2 angles. तो ये चीजें आपको जहां पे भी दिखेंगी, आप उस पॉलीगन को क्लासिफाई कर देंगे इन द कैटेगरी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. In other words, a simple closed figure bounded by 4 line segments, it's called a quadrilateral. It has 4 sides, A, B, B, C, C, D and ED. यानी कि अगर उसके पास 4 साइड्स है तो ऑब्वियसली उनके नेम भी होंगे, 4 वर्टेक्स होंगे, A, B, C, D, 4 एंगल भी होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, और आपके पास आपके डायगोनल्स भी होंगे विच इज A, C and D, B. और The sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री. कभी जब भी पूछा जाए कि क्वाड्रिलेटरल के क्या सम है चारों एंगल्स का, तो that is equal to 360 degree. Now, plane curve. A circle is a very common example of plane curve. So, the curve obtained by joining a number of points consecutively without lifting the pencil. यानी कि आपने यहाँ से पेंसिल को स्टार्ट करा और इस तरीके से विदाउट पेंसिल को उठाए हुए क्या बना दिया? एक सिंपल कर्व बना दिया. तो that is your plane curve circle. Now we have convex and concave polygon. So polygon हमें क्या पता है? A polygon is a closed figure bounded by 3 or more line segments such that each line segment intersect exactly 2 other points vertices as shown in the above given figure. Now we have the categories. हमने polygons को further categorize करा है into concave and convex polygon. So convex, the polygons which have all the diagonals inside the figure are known as a convex polygon. So property of convex polygons, all diagonals are present inside the polygon, all interior angles are less than 180 degree and all the vertices always points outward. तो ये है हमारी प्रॉपर्टी हाँ कॉन्वेक्स पॉलीगन की. डायगोनल्स का आएंगे इनसाइड द शेप, आपका जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? लेस देन 180 डिग्री, और वर्टिसेस होंगे टुवर्ड्स आउटसाइड, टुवर्ड्स आउटवर्ड. द पॉलीगन व्हिच हैव सम ऑफ इट्स डायगोनल आउटसाइड द फिगर आर ऑल्सो नोन एज अ कॉन्केव पॉलीगन. जिनके डायगोनल्स बाहर होंगे वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? क्या रिफर किया जाएगा उन्हें? उन्हें रिफर किया जाएगा कॉन्केव पॉलीगन. Property of concave polygon. A polygon with some diagonals present outside the shape, at least one angle measure more than 180 degree. The vertex of a concave polygon point inward as well as outward. यानी कि वो inward भी करेगा और outward भी करेगा. Now we have regular and irregular polygons. जब हम कहते हैं regular polygons, it means equal angles and equal sides. जब हम कहते हैं irregular polygon, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ना हमारे पास इक्वल साइड्स होंगी और ना ही इक्वल एंगल्स होंगे. So polygon which are equilingular and equilateral are called regular polygons. Polygons is a regular if its all sides are equal and its all angles are equal. So that a regular polygon is both equilingular and equilateral. For example, a square has sides of equal length and angles of equal measure. Hence, it is a regular polygon. A rectangle is equiangular but not इक्विलेटरल. यानी कि जो आपका रेक्टेंगल है वो इक्वी एंगुलर तो है कि चारों एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री 90 डिग्री, बट ओनली 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट? सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो इसका मतलब वो इक्विलेटरल नहीं है. नाउ रेगुलर पॉलीगन्स के एग्जांपल्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन. और पॉलीगन्स दैट आर नॉट रेगुलर, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सॉरी रेक्टेंगल हो गया. तो इस तरीके से आप इनके एग्जांपल्स बता सकते हैं. Now hence square is a regular polygon but a rectangle it's not as its angles are equal but sides are not equal.
Now students, we have our exercise 3.1. State if each polygon is concave or convex. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जहां पर डायगोनल हमारे अंदर बन जाए दैट इज योर कॉन्वेक्स, पर यहाँ पर देखिए आपका एक डायगोनल कहाँ बनेगा, बाहर। नेक्स्ट वी हैव, तो यहाँ पर ये आपका कॉन्वेक्स है क्योंकि सारे डायगोनल जो आपके बनेंगे वो इनसाइड बनेंगे, सो दिस इज कॉन्वेक्स। सो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। नाउ टू स्टेट इफ ईच पॉलीगन इज रेगुलर और नॉट, तो दिस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन एंड दिस इज, बाकी दो में आप क्लासिफाई करेंगे। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, तो यहाँ पर जो आपका मेजरमेंट होता है फॉर द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हम वो पढ़ने जा रहे हैं। सो ड्रॉ अ पॉलीगन ऑन द फ्लोर यूजिंग अ पीस ऑफ चॉक इन द फिगर अ पेंटागन एबीसीडी इज शोन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास एक पेंटागन और उसके एक्सटीरियर एंगल, 5 एक्सटीरियर एंगल मेंशन किए गए, एंगल 1 2 3 4 5। स्टार्ट एट वॉक along AB on increase reaching B you need to turn through an angle of angle 1 to walk along BC. When you reach at C you need to turn through an angle from angle 2 to walk along. तो यहाँ पर हमने देखा therefore angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5 is equal to 360 डिग्री, क्योंकि हम एक कंप्लीट क्या कर रहे हैं, कंप्लीट राउंड कर रहे हैं। This is true whatever be the number of sides of the polygon. Therefore, the sum of the measure of the exterior angles of any polygon is 360 डिग्री। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि कौन सा पर्टिकुलर पॉलीगन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है एनी पॉलीगन, हर एक पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 360 डिग्री। We will learn how to find the sum of the exterior angles of a polygon having n sides. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, sum of all exterior angles plus sum of all interior angles, so n multiplied by 180 degree. So sum of all exterior angle is n multiplied by 180 degree minus sum of all interior angles. अगर जितनी भी आपकी साइड्स हैं आप उसे n से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल से माइनस कर दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का, 180 डिग्री n माइनस 180 डिग्री n प्लस 360 is equal to 360 degree. Therefore, we conclude that sum of all exterior angles of the polygon having sides 3 n side is equal to 360 degree. Therefore, measure of each exterior angle of the regular polygon, जितना भी आपका इंटीरियर एंगल आप 360 से उसको डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में n रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, तो 3 है, आप 360 से 3 को डिवाइड कर देंगे, आपको अपना एक इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। ओके, ऑल्सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन 360 डिग्री, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको साइड फाइंड आउट करनी है तो एक एक्सटीरियर एंगल से आप डिवाइड कर दीजिए 360 डिग्री को, यू विल गेट योर आंसर। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90 and this is also given 55, so 55 plus 90 plus 90 plus x। अब यहाँ पर जब आप 90 90 180 180 plus 55 235, तो 360 में से आप 235 को माइनस करेंगे तो आपको आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 125 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो आप क्या करोगे, आप 360 को 45 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि यही हमारा फॉर्मूला है, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी साइड्स है, 8 साइड्स है, दैट इज योर ऑक्टागन। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 9 साइड्स। तो आप 360 बाय डिग्री बाय n कर देंगे, तो 360 डिवाइडेड बाय n आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। सो द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 40 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, find the measure of one exterior angle in each regular polygon, round your answer to the nearest tenth if necessary। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो आप 360 से अगर 5 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 72 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर, आपको x फाइंड करना है, दैट इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90, क्योंकि ये भी यहाँ पर 90 आएगा। So 90 plus 90 plus 60 plus 70 plus x is equal to 360 degree. 90 90 180, 60 plus 70 130 plus x is equal to 360। आप इन्हें प्लस करेंगे तो 210
30 प्लस 180 210 एंड 310 आएगा। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 360 माइनस 310, सो x विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स। तो आप क्या करेंगे, आप 360 से 6 को डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। सो 6 तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आप बाकी साइड्स के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 12 डिग्री। तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 360 को 12 से एंड यू विल गेट 30 साइड्स। ठीक है, 12 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30। नाउ फाइंड द मेजर, ये 120 होना चाहिए था बच्चों, ठीक है, क्योंकि अगर 120 होता तो 3 साइड आती पॉसिबल है, 30 साइड का तो पॉलीगन, ठीक है, बट यहाँ पे 112 डिग्री है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 20 साइड्स। तो आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है, तो आप 360 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो आप 360 से डिवाइड कीजिए, अगर आपका एक्यूरेट आंसर आ रहा तो यस यू कैन से, अदरवाइज नो। तो पार्ट 6 के दोनों पार्ट्स आप आराम से कर सकते हैं। नाउ वी हैव काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि हमारे पास कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स है, जो कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ साइड्स एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंड दे आर ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। सो ट्रेपीजियम सबसे पहले हमारे पास, अ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो जो इसके अपोजिट साइड्स होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल यू हैव। A trapezium is a closed plane shape having 4 sides in which one pair of opposite sides are parallel. Observe the trapezium figure given below, which shows a trapezium WZYZ in which WZ is parallel to XY, and these are the bases, while WX and ZY are the legs of the trapezium. तो ये आपके legs हैं और ये आपके बेस हैं, और आपके जो बेस होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम, तो सबसे पहले आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इट कैन बी डिफाइंड एज ट्रेपेजियम इन विच बोथ लेग्स एंड बेस एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर। ओके, नाउ स्केल एंड ट्रेपेजियम कुछ भी इक्वल मेजरमेंट का नहीं होगा। स्केल ट्रेपेजियम इज अ ट्रेपेजियम विद नो साइड्स ऑफ इक्वल मेजर। राइट ट्रेपेजियम जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अ राइट ट्रेपेजियम इज अ ट्रेपेजियम हैविंग 2 राइट एंगल्स। Now we have kite. Kite is a quadrilateral in which 2 pairs of adjacent sides are equal length and the diagonals intersect each other at right angles. The figure shown below represent a kite. तो ये आपके काइट है, यहाँ पर जो उसके अपोजिट साइड होंगी, राधा 2 पेयर्स जो एडजेसेंट होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट करने के वक्त पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, जब वो एक दूसरे को काटेंगे, क्रॉस करेंगे, तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। Next we have parallelogram is a quadrilateral. It is a closed 4-sided 2-dimensional figure in which the opposite sides are parallel and equal in length. Also the opposite angles are also equal, as the name suggests. It has something to do with the parallel line. तो जो parallelogram है तो इसकी जो opposite sides होती हैं वो एक दूसरे के parallel होती हैं और equal होती हैं, ठीक है। So ये हमारा parallelogram है। Quadrilaterals which are parallelogram and quadrilaterals which are not parallelogram. सो जो पैरेललोग्राम नहीं है तो उनकी जो साइड्स होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, ऑब्वियसली वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, और जो पैरेलल होंगी उनके अपोजिट साइड्स इंटरसेक्ट, मतलब अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। नाउ एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स, द साइड AB इज अपोजिट टू द साइड CD एंड द साइड AD इज अपोजिट टू द साइड BC। ऐसा तो मैं देखने से पता चल रहा है AD इज अपोजिट टू BC, AB अपोजिट टू CD। नाउ अपोजिट एंगल्स, एंगल A is opposite to angle C and angle B is opposite to angle D. Now adjacent side, the AB, adjacent side का मतलब होता है कि एक, यहाँ पे देखिए B आपका कॉर्नर सेम है, ये BC और AB आपकी adjacent side है, C आपका कॉमन है, AD और CD आपके adjacent side होंगे। तो इस तरीके से आप बताते हैं। Adjacent angles, angle A and angle B are adjacent angles as they are at the ends of the same side AB. Now we have perimeter of parallelogram. Perimeter of parallelogram का फॉर्मूला क्या होता है, 2a plus b यूनिट, यानी कि आप रेक्टेंगल ही कह सकते हैं, कुछ रेक्टेंगल l plus b मल्टीप्लाई बाय 2, इसी यही फॉर्मूला होता है।
नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। तो आपको यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 7 दिया, आप इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। 12 plus 7 19, 19 multiplied by 2 38 centimeter. Next we have angles of a parallelogram. There are 4 interior angles in a parallelogram and the sum of the interior angles of a parallelogram is always 360 degree. The opposite angles of a parallelogram are equal and the consecutive angles of a parallelogram are supplementary. तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं, ठीक है, और जो आपके कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल डी और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट है। नाउ प्रॉपर्टी द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। तो यहाँ पे प्रूफ करके बताया है हमने कि किस तरीके से। तो आप यहाँ पे इन्हें दो ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे, AC is equal to AC, angle 1 is equal to angle 4 and angle 2 is equal to angle 3 according to alternative interior angles। और ये दोनों ट्राइंगल हमने कर दी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ अकॉर्डिंग टू CP/CT। अब हम कह सकते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। इन गिवन फिगर बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z, s is opposite to b। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर b 100 डिग्री है तो x कितना हो जाएगा 100। ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम होता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80। अब ये इसके अपोजिट है तो ये भी हो जाएगा 80। ये आपका जो सम होता है ये बनाते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। अगर एक एंगल 80 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 100। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। x is equal to 100, y is equal to 100, z is equal to 80। आगे बढ़ते हैं। Now we have diagonals of a parallelogram. The diagonals of a parallelogram is the line segment that connects its non-adjacent vertices. A parallelogram has two diagonals and the length of the diagonals of a parallelogram can be found by using various formulas depending on the given parameters and dimensions. Properties of diagonals of a parallelogram. The diagonal of a parallelogram always bisect each other. Bisect का मतलब होता है कि जब ये दोनों diagonals एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जब ये क्रॉस करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करेंगे। इन अ रेक्टेंगल, सॉरी इन स्क्वायर ओनली, ओके। इन अ रेक्टेंगल द डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट राइट एंगल। रेक्टेंगल के अंदर आपके जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, बट वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करेंगे। इन अ रोम्बस द डायगोनल्स मे नॉट बी नेसेसरली इक्वल बट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये चीजें यहाँ पे प्रूफ की हुई हैं, ठीक है। दस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट वी हैव आवर एक्सरसाइज 3.3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरेललोग्राम। तो आप कहेंगे कि ये, क्योंकि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है, अपोजिट साइड, थर्ड सेकंड वाला नहीं है, थर्ड और फोर्थ में आप बताएंगे। नाउ जर्दन क्लेम दैट एनी फोर साइडेड ऑब्जेक्ट इज अ पैरेललोग्राम, इज इट करेक्ट? नो, बिकॉज एनी फोर साइड, तो ट्रेपीजियम भी तो आपका वही है, क्या कहते हैं, फोर साइडेड क्वाड्रिलेट फिगर, बट वो पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि जो उसके अपोजिट साइड्स हैं, राइट, वो एक पॉइंट पर आकर, क्योंकि ओनली वन साइड पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल टू ईच अदर, बट जो दूसरी साइड्स हैं वो एक पॉइंट पर आके क्या करेंगी, वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, तो वो आपका पैरेललोग्राम नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द पैरेललोग्राम ABCD गिवन बिलो, इफ AB इज इक्वल टू 60, सो DC इज इक्वल टू, अगर ये 60 है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो DC भी आपका 60 ही होगा। Now question number 4, given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used। AD किसके इक्वल होगा? AD आपके इक्वल होगा DC के, because opposite sides are equal to each other। एंगल DC भी किसके इक्वल होगा? एंगल DC भी होगा आपके एंगल DAB के इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसी तरीके से आप ये बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। Now, question number 5, the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। Find the measure of each of the angle of the parallelogram। तो जो adjacent angles होते हैं उनका जो सम होता है that is equal to 180 डिग्री। तो that will be 2x plus 3x is equal to 180 डिग्री। 2x plus 3x करेंगे तो 5x is equal to 180 डिग्री। x is equal to 180 divided by 5। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3 एंड 6, 36। 2 को 36 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 72, और 36 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो
ये दो आपके एंगल है और इन दोनों का आप सम देखेंगे तो वो भी इक्वल हो जाएगा आपके 180 डिग्री से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे 2x और 3x करने की जगह x प्लस x कर दीजिएगा, बाकी आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। नाउ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 2:3:5:8। तो क्वाड्रिलेटरल कह दिया, सेम यही मेथड होगा, आप इन 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x करेंगे बट इज इक्वल टू 360 करेंगे। फिर जो आपके x की वैल्यू आएगी तो 2x में 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू, 3x के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ फाइंड द मेजर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इन अ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल 115 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ A एंड B। ओके, ये वाला मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। A B C D, अगर जो एंगल D है वो 115 डिग्री है तो B भी आपका 115 डिग्री होगा, B मिल गया आपको। और A आप 180 में से माइनस कर लेंगे क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं आपके वो क्या होंगे, वो होंगे आपके, उनका सम 180 डिग्री का, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 120, 60 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 65 और C भी आप फाइंड कर सकते हैं 65। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 24 डिग्री लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है 3-4 क्वेश्चन के वो इसके अंदर है और आप ये सॉल्व कर सकते हो, इससे पता चलेगा कि आपने सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को अच्छे से समझा है या फिर नहीं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे विच इज योर रोम्बस। तो अभी तक हम पढ़ा हमने पैरेललोग्राम के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में, काइट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। और रोम्बस इज अ टू डायमेंशनल quadrilateral in which all the sides are equal and the opposite sides are parallel. It is a parallelogram whose diagonals are perpendicular to each other. Some of the real life examples of a rhombus are kite, diamond, etc. So observe the rhombus ABCD and note the properties listed below. रोम्बस के बारे में हम ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट जब करेंगे तो वो 90 डिग्री पर करेंगे, राइट, मतलब इंटरसेक्ट जब करेंगे। ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट मींस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। Opposite angles are congruent means opposite angles are equal to each other. Diagonals of AC and BD bisect each other at right angles and adjacent angles in a rhombus are supplementary, यानी कि उनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ रोम्बस फॉर्मूलाज है। इफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज A देन द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 4A, जैसे कि स्क्वायर में होता है। Now if the length of the two diagonals of the rhombus is D1 and D2, then the area of the rhombus is half multiply by D1 into D2। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। Now we have next rectangle। rectangle में हम देखेंगे opposite sides are parallel and AD is parallel to BC and AB parallel to DC. The opposite sides are congruent means equal to each other. Opposite all angles are right angle, angle A, angle B, angle C, angle D is equal to 90 degree. The diagonals of AC and BD are congruent and bisect each other, यानी कि diagonals आपके इक्वल होंगे और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी कि जब इंटरसेक्ट होंगे तो हाफ हाफ इक्वली डिवाइड करेंगे। रेक्टेंगल के फॉर्मुलाज क्या है हमारे पास, एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ और पेरीमीटर के लिए 2 इंटू एल प्लस बी। नाउ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे प्रूफ करके बताया हुआ है कि किस तरीके से जो इनके डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में तो बच्चों में बचपन से ही पता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और वो 90 डिग्री का वो इंटरसेक्ट जब करेंगे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। एंड डायगोनल्स GE एंड FD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल GE इज इक्वल टू FD, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। नाउ स्क्वायर फॉर्मूला, एरिया ऑफ द स्क्वायर A इंटू A स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 2, आप 4A कह सकते हैं बेसिकली। Now we have example number 9, find the area and the perimeter of square whose side is 6 centimeter। तो एरिया के लिए हम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे बिकॉज फॉर्मूला इज A स्क्वायर, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द पेरीमीटर, तो 4A, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दी स्पेशल पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपका होगा रेक्टेंगल में नहीं होगा, रोम्बस और स्क्वायर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। तो इस टेबल को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी डिटेल में हर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 3.4।
एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उसके पास 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, इसलिए वो एक क्वाड्रिलेटरल है। एक पैरेललोग्राम, क्योंकि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। रोम्बस, बिकॉज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, राइट। रेक्टेंगल, ऑल 4 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप इन्हें प्रूव कर सकते हैं। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस, स्क्वायर, 4 राइट एंगल्स, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि जो उनके एंगल का है वो 180 डिग्री से कम है, और जो उनके डायगोनल्स है वो इनसाइड यानी कि रेक्टेंगल के अंदर ही बनते हैं। फाइंड द एरिया इन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर व्हिच साइड इज 5 सेंटीमीटर। एग्जांपल में इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हाफ इंटू 12 इंटू 7.5 कर देंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, 6 5 जा 30, 3 6 7 जा 42 प्लस 3 45, सो 445 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल देन फाइंड। ये रेक्टेंगल है, ये आपको 116 दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो 116 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्वियसली 2 भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पर अब 90 डिग्री, क्योंकि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट और हाफ करेंगे, तो जो 6 और 7 होगा तो 90 का हाफ हाफ हो जाएगा, 45 एंड 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपके पास है कंप्लीट, ये 17 है, तो ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा। नेक्स्ट ये आपका 8 है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, सारी प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से सुनी होंगी। बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी हो या फिर आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हो या आपको प्रॉपर्टीज बतानी हो हर एक पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल की, तो ये आपको अच्छी तरीके से गो थ्रू करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ, तभी बता पाओगे। सो जस्ट मेक श्योर कि आप एक और बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।